Okay, so let's start with Naukar mantra. Myra, Naukar mantra बोलना है. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Uvajayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamokaro, Sava Pava Banashanam, Mangalam Savisim, Paramam Havai Mangalam. Okay, so today we will learn about Karemi Bhante Sutra. Okay, तो लास्ट टाइम हमने लोकगत सूत्र देखा था, पर लोकगत सूत्र इतना समझ नहीं आया किसी को. सो फॉर राइट नाउ जस्ट स्किप द लोकगत सूत्र. ओके, सो विल कम बैक टू लोकगत सूत्र आफ्टर सम टाइम. पर बिफोर लोकगत सूत्र हमने अन्नत सूत्र पढ़ा था. तो हु वांट टू टेल द मीनिंग ऑफ अन्नत सूत्र? मायरा, डू यू वांट टू टेल द मीनिंग ऑफ अन्नत सूत्र? Yeah, sure. So Associatum means Another. What does another mean? So Anatha means 12 minor or Exception of Kausa. yeah, exception of Kausag. So the first one is Associanum, that means breathe in. Nisisianum, breathe out. Kasianum, coughing. Chianum, sneezing. Jambayanum, yawning. Udaya, blood. Udayanum, blood, Belching. yeah, belching. Vinasiganum, like fart. Pamaliye means dizziness. Pitta Muchaya means fainting. Suhu Mehim Angar Sanchalayam means Subtle body movements. Sahu Sumim Ditti Sanchalayam. Kale Sanchalayam means movements of movements of fluid in body. Suhu Mehim Ditti Sanchalayam means subtle movements of eyes. Eva Mahim Agareham. Yeah, Eva Mahim Agarehim means exceptions. And there's 4 exceptions. And there are 4 exceptions. One cannot bear to witness small animals killing each other. The other one is moving away because of natural disasters. And the third one is being attacked or in danger of being attacked. And the fourth one is moving away because you don't know the place. Yeah. Apaga aviraya means without breaking and without Continue. Yeah. Hujja May Kausaga, this is how my Kausik should be like. Java Arihantanam Bhagwantanam be like. I will only end my Kausak after I do Namaskar to Bhagwan. And then how to do Kausak? Ta Kayanam, Jananam, Moninam, Appanam, Vosirami, my body without any movement, speaking without dhyan. I will tyag my actions till then, and then that's it. Okay, well, that's good. Okay, थोड़ा practice or revise करना. Okay, but I think the meaning was good. Meaning was right. Okay, so each time we'll start with the new sutra, that is Karemi Bhante Sutra. Let me share my screen. Okay, so Karemi Bhante Sutra is one of the most important sutras. Okay, so the Karemi Bhante Sutra, उसके 2 नाम है. Okay, उसको सामायिक सूत्र भी कहते हैं और उसको आवश्यक सूत्र भी कहते हैं. Okay, so there are 2 names of Karemi Bhante Sutra. One is सामायिक सूत्र and second is आवश्यक सूत्र.
Okay. So does anyone know what are the 6 avashyaks? Yes, Samar. Shwetambar or Digambar? Shwetambar. Okay. Chavisato Vandan Pachkhan Swadhyay. Samayik. Chavisato Vandan Swadhyay. Pachkhan Kausar. Right. Okay. So those are the 6 avashyaks. So what is the meaning of avashyak? Avashyak matlab kya? Avashyak matlab jo bhi kriya that is mandatory. Okay. That is you have to do that kriya daily. Okay. So that is known as avashyak. If you miss any of these 6 kriyas, तो हमको दोष लगता है, हमको अतिचार लगते हैं. Okay. तो आवश्यक को इट इज कंपेयर्ड विद ब्रीदिंग. जैसे हम बॉडी के लिए ब्रीदिंग इज आवश्यक, राइट? इट इज कंपल्सरी. यू नीड टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव. सिमिलरली आत्मा के लिए आवश्यक क्रिया इज कंपल्सरी. विदाउट आवश्यक क्रिया आत्मा को दोषित होता है, राइट? सो सिमिलर टू बॉडी, ब्रीदिंग इट्स द सेम फॉर आत्मा इज नोन एज आवश्यक क्रियास. सो देर आर 6 आवश्यक क्रियास. तो पहला आवश्यक क्रिया इज सामयिक. ओके, सो दैट मीन्स यू हैव टू डू 1 सामयिक डेली. ओके, फिर उसके बाद है सेकंड इज चौवीसत्व. चौवीसत्व मतलब चैत्य वंदन. ओके, फॉर एग्जांपल तुम चैत्य वंदन करते हो या फिर भगवान की स्तुति करते हो, राइट? यू आर डूइंग भगवान स्तुति, उसको चौवीसत्व बोलते हैं, या चैत्य वंदन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्तुति. ओके, सो सेकंड इज चौवीसत्व. उसके बाद है थर्ड इज गुरु वंदन. तुम सबको गुरु वंदन की विधि आ गई है. सो गुरु वंदन इज आवश्यक. ओके, सो वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ओके, पहले तो तुम भगवान की पूजा करके यू हैव टू डू चैत्य वंदन एंड यू हैव टू डू गुरु वंदन. ओके, तो एंड फिर उसके बाद दोपहर को तुम सामयिक करते हो. तो यहाँ पे 3 आवश्यक हो जाते हैं. फिर उसके बाद है फोर्थ है पचखाण. पचखाण मतलब तुम जैसे नौकारसी का पचखाण लेते हो, चौवियार, दुवियार, तिवियार का पचखाण लेते हो. सो दैट इज अ पचखाण. सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 पचखाण डेली. यू शुड नेवर बी विदाउट अ पचखाण. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट पचखाण है चौवियार, दुवियार या तिवियार. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट पचखाण, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी रात्रि भोजन का पाप से तुम बच जाते हो. सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पचखाण इज आइदर दुवियार, तिवियार या चौवियार. तो दैट इज द फोर्थ आवश्यक. ओके, फिर उसके बाद फिफ्थ आवश्यक इज प्रतिक्रमण. ओके, प्रतिक्रमण मतलब यू हैव टू डू मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रतिक्रमण. ओके, दैट इज काइंड ऑफ लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डू, बट दैट इज ऑल्सो एन आवश्यक. तो इसके लिए क्या बोला है कि इफ यू आर अनेबल टू डू द डेली प्रतिक्रमण, you have to do pratikraman once every 14 days. Okay, and if you are unable to do pratikraman once every 14 days, you have to do pratikraman once every 4 months, right? तो पक्की प्रतिक्रमण नहीं हो तो चौमासी प्रतिक्रमण. And if you are unable to do the चौमासी प्रतिक्रमण, you have to do the संवत्सरी प्रतिक्रमण. Okay, so there are 4 levels of प्रतिक्रमण. But the important thing about प्रतिक्रमण is कि if you do the only the संवत्सरी प्रतिक्रमण, right? तो उससे क्या होता है, तुम नरक गति का आयुष्य बंद नहीं करते हो. ओके, तो यू डू नॉट गो टू नरक. तो उससे अनंतानुबंधी जो कषाय है उसका बंध नहीं होता है. सो दैट इज द रीजन यू डू संवत्सरी प्रतिक्रमण, दैट यू डू नॉट गो टू नरक. फिर उसके बाद इफ यू डू द चौमासी प्रतिक्रमण, दैट इज वंस एवरी 4 months, राइट? सो वो प्रतिक्रमण से क्या होता है, तुम तिर्यंच गति में नहीं जाते हो, यू डू नॉट बिकम एनिमल. ओके, सो दैट्स वाई यू डू चौमासी प्रतिक्रमण. चौमासी प्रतिक्रमण से अप्रत्याख्यानीय कर्म का नाश होता है. ओके, फिर उसके बाद है पक्की प्रतिक्रमण, दैट इज वंस एवरी 14 days. सो इफ यू डू प्रतिक्रमण वंस एवरी 14 days, उससे क्या होता है, तुमको मनुष्य गति मिलती है. ओके, सो यू डेफिनेटली गेट द मनुष्य गति इफ यू डू प्रतिक्रमण वंस एवरी 14 days. उससे प्रत्याख्यानीय कषाय का नाश होता है. और इफ यू डू प्रतिक्रमण डेली, सुबह और शाम का, देन यू गेट देव गति. ओके, उसमें तुमको देश वीरति गुणस्थानक मिलता है और उससे तुमको देव गति मिलती है. ओके, पर ये प्रतिक्रमण भाव से करना है, यू नो, नॉट यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड एंड यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट द प्रतिक्रमण. ओके, तो फिफ्थ आवश्यक इज प्रतिक्रमण. एंड लास्ट आवश्यक कौन सा है, काउत्सर्ग. ओके, काउत्सर्ग मतलब रोज तुमको लोकगस का काउत्सर्ग करना है. Okay, so for example, you can do kausarg of 4 logas, you can do kausarg of 10 logas, 20 logas, whatever. तो तुम जैसे सामयिक करते हो,
So whenever you do samayik, start with kausarg. You do annat and you do kausarg of 4 logas या फिर 10 logas, तो तुम्हारा एक और आवश्यक complete हो जाएगा, right? So whenever you do samayik, start with a kausarg. That way you can complete one more आवश्यक. Okay, so these are the 6 आवश्यक्स. So ये करमी भन्ते सूत्र है, तो करमी भन्ते सूत्र it describes this 6 आवश्यक्स. तो ये जो 6 आवश्यक जो क्रिया बताई है शास्त्र में, वो करमी भन्ते सूत्र से ली गई है. करमी भन्ते सूत्र से उसका उद्भव, मतलब it is coming from the करमी भन्ते सूत्र. Okay, this 6 आवश्यक्स. Okay, तो let's see the meaning of करमी भन्ते सूत्र. तो करमी भन्ते सामाय्यम. ओके, करमी भन्ते सामाय्यम अर्थात हे तीर्थंकर परमात्मा. भन्ते मतलब तीर्थंकर परमात्मा. हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं सामयिक करने की आज्ञा चाहता हूं. ओके, हे तीर्थंकर परमात्मा, शैल आई डू द सामयिक. ओके, मैं सामयिक करूं. दैट्स व्हाट क्वेश्चन वी आर आस्किंग. करमी भन्ते सामाय्यम मतलब हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं सामयिक करूं. ओके, तो ये जो करमी भन्ते सूत्र है ना, it is a most important सूत्र, क्योंकि there are 3 reasons. okay, उसमें बताते हैं कि हमको सामयिक क्यों करना चाहिए, सामयिक कैसे करना चाहिए और सामयिक किस लिए करना चाहिए. okay, it explains 3 things. हम सामयिक क्यों करते हैं, सामयिक कैसे करते हैं और सामयिक किस लिए करते हैं. so it is giving us that information about the सामयिक. okay, तो करमी बनते सामय्यम मतलब हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं सामयिक करूं. फिर उसके बाद बोलते हैं कि सामयिक क्यों करना चाहिए. तो यहाँ पे बोलते हैं सावज्यम जोगम पचखामी. सावज्यम जोगम पचखामी मतलब सावध्य योग के त्याग का पचकाण, मतलब पाप रूपी प्रवृत्ति का त्याग का पचकाण. ओके, सामयिक करने का रीजन क्या है कि हमको सभी पाप रूपी जो प्रवृत्ति है उसका पचकाण लेना है, उसके त्याग का पचकाण. तो दैट इज द रीजन वी आर डूइंग सामयिक. सो पहले लाइन में ही इट गिव्स द रीजन व्हाई वी वांट टू डू द सामयिक. हमको सभी जो पाप रूपी प्रवृत्ति है उसका त्याग करना है और वो त्याग का पचकाण लेना है. ओके, उसकी हम प्रतिज्ञा ले रहे, हम पचकाण ले रहे. फिर उसके बाद है जाव नियमम पजुआ स्वामी. जाव नियमम पजुआ स्वामी मतलब जब तक मेरा नियम हो तब तक. ओके, जब तक मेरा नियम हो. तो सामयिक कितने मिनट्स का होता है? कैन एनीवन टेल मी? यस मायरा. 48. राइट, सामयिक इज 48 मिनट्स. दैट इज 1 मुहूर्त या 2 घड़ीज. राइट, तो सामयिक 2 घड़ी का होता है. तो जावन नियमम पजुआ स्वामी मतलब जब तक 48 मिनट्स नहीं हो तब तक मैं ये पाप रूपी प्रवृत्ति का त्याग करता हूं. मतलब आई विल नॉट डू एनी पाप रूप प्रवृत्ति for 48 minutes. Okay, so here the thing to understand is हम पाप कैसे करते हैं. right, तो पाप हम मन से करते, वचन से करते और काया से करते. right, there are 3 ways we do पाप. हम मन से करते हैं, वचन से करते हैं और काया से करते हैं. right, फॉर एग्जाम्पल काया से हम कुछ करें तो जीव हिंसा होती है. वचन से हम किसी को कुछ खराब बोले, राइट, तो उससे वचन से पाप लगता है. और मन से हम खुद खराब सोचे तो मन से पाप लगता है. तो पाप करने के श्रावकों के लिए, श्रावक मतलब हम, ओके, हमारे लिए देयर आर 6 वेज वी डू पाप. तो यहाँ पे लिखा है दुवियम तिविहरम. ओके, दुवियम मतलब 2 वेज और तिविहरम मतलब 3 वेज. ओके, तो श्रावक लोग पाप कैसे करते हैं? दे डू पाप इन 2 वेज एंड पाप इन 3 वेज. तो टोटल 6 वेज. ओके, 2 multiplied by 3 is 6 ways. तो यहाँ पे लिखा है कि हम कैसे पाप करते हैं. तो दुवियम मतलब 2 ways. तो 2 ways में पाप कैसे करते हैं? हम पाप करते और कराते हैं. ओके, those are the 2 ways. हम खुद पाप करते हैं और दूसरों को बोल के पाप कराते हैं. तो those are the 2 ways हम पाप करते हैं. राइट, और तिवियनम मतलब मन वचन काया से. सो देयर आर 6 ways. तो कौन सा हुआ? मन से पाप करना, मन से पाप कराना, वचन से पाप करना, वचन से पाप कराना, काया से पाप करना, काया से पाप कराना. ओके, सो दोस आर द 6 वेज हम श्रावक पाप करते हैं. और ये 6 वेज को हमको त्याग करना है सामयिक में.
तो सामयिक में हम जब बोलते हैं सावजम जोगम पचकामी, सो वी हैव टू एलिमिनेट 6 टाइप्स ऑफ पाप क्रियास। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है मानेरम वाये कायरम न करेमी न कार्वेमी, मतलब मन से, वचन से, काया से मैं करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं। ओके, दोस आर द 6 वेज। जो दुवियम तिवियरम है ना, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है मनेरम वाया है कायरम, मन से, वचन से, काया से, न करेमी न कार्वेमी, मैं करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट व्हेन यू आर डूइंग सामयिक। तो सामयिक में क्या करते हैं, हम जनरली सामयिक लेते हैं, उसके बाद हम आइदर काउसर्ग में खड़े रहते हैं या फिर बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि काया से हम पाप हम मिनिमम करते हैं, राइट। हम बैठ जाते हैं, हम काया इतना हिलाते नहीं है, राइट। वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी पाप प्रवृत्ति। तो काया से पाप तो बहुत सिंपल है रोकने का, राइट। तो काया से पाप होता नहीं है। वचन से भी पाप नहीं होता है सामयिक में, क्योंकि वचन में भी हम किसी को कुछ खराब बोलते नहीं है, हम जनरली मौन में होते हैं या फिर सूत्र या स्वाध्याय करते हैं, राइट। तो वचन से भी इतना पाप होता नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन से पाप होते रहते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड, राइट। हम सामयिक करते हैं, हमारा माइंड कहाँ पे होता है, हम स्विमिंग करने गए, हम बैडमिंटन खेलने गए, हम मून पे जाके आए, राइट। इन इन तुम्हारा मन का देयर इज नो कंट्रोल, राइट। तुम्हारे मन से कंटिन्यूअस पाप चालू है। तो काया से पाप तो इट्स सिंपल, राइट। तुमने बैठ गए, काया को हिलाया नहीं, तो काया से पाप रुक गया। वचन से भी तुमने मौन धारण किया, तो वचन से भी पाप है नहीं। पर मन से पाप कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ऑफ माइंड। और जब मन से पाप होते हैं तब ये पचकान का भंग होता है, क्योंकि हम बोलते हैं दुवियम तिविहनम, ओके। और पचकान लेते हैं सावजम जोगम पचकामी। तो जब तक मन से अशुभ विचार चालू है तब तक हमारा सामयिक हो नहीं रहा है। ओके, दैट इज अ मीनिंग कि तो मन से भी अशुभ विचार को रोकना है। ओके, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव, और यू डो नॉट हैव टू थिंक एनीथिंग अबाउट द संसार। ओके, यू हैव टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन स्वाध्याय। तो इसलिए हम सामयिक में क्या करते हैं, सो व्हाट टू डू इन सामयिक, राइट। तो सामयिक में हम सूत्र घोपते हैं या स्वाध्याय करते हैं, राइट। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। तो उससे क्या होता है कि अपना माइंड कंट्रोल में रहता है। ओके, तुम सूत्र घोपते हो, देन यू गेट इन्वॉल्व इन द सूत्र, तो तुम्हारा माइंड कहीं और जाता नहीं है। उसी प्रकार तुम स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय मतलब इफ यू आर रीडिंग सम शास्त्रस और बुक, देन यू गेट इन्वॉल्व इन द बुक, और उसके कारण तुम्हारे मन कहीं और जाता नहीं है। तो सामयिक में those are the that is the first step. Okay, first step is you have to do swadhyay or you have to memorize the sutras. Okay, second step you can do is चिंतन। Okay, तुमने जो भी पढ़ा है उसको आंखें बंद करके you can think about it. Okay, for example तुमने कोई बुक पढ़ा है, कोई धर्म का स्वाध्याय किया है, then you can go to second step, you can close your eyes and start thinking about the meaning, और उसको चिंतन बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज ध्यान। ओके, तो ये सामयिक में 3 चीज करने की होती है। फर्स्ट स्टेप इज स्वाध्याय, सेकंड स्टेप इज चिंतन, एंड थर्ड स्टेप इज ध्यान। बट फॉर यू गाइस स्वाध्याय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुप्रेक्षा और ध्यान तो बहुत बहुत बाद में आता है, यू नो, बट फॉर यू यू हैव टू स्पेंड द 48 मिनट्स इन स्वाध्याय। सो तुम्हारा माइंड कहीं पे अशुभ विचार में जाए नहीं। ओके, फिर उसके बाद तस भंते परिकमामी। ओके, तो यहाँ पे जो भंते शब्द है वो इट सिग्निफाइज द गुरु भगवंत। जो पहले जो भंते शब्द आया, ओके, फर्स्ट लाइन में करेमी भंते, दैट वाज तीर्थंकर परमात्मा। पर यहाँ पे जो सेकंड जो भंते आया तस भंते, दैट सिग्निफाइज गुरु भगवंत। ओके, तस भंते परिकमामी। तो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज, हम जब सामयिक करते हैं तो सामयिक करने से पहले हमारे संसार में जो भी पाप हुए हो मन वचन काया से, हमने जो पाप किए हैं और पाप कराए हैं लोगों से, तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ओके, सो दैट इज अ सेकंड रीजन वी आर डूइंग सामयिक। ओके, तो जो भी हम हमारे सामयिक करने से पहले दिन में जो भी पाप हुए हैं उसका हम यहाँ पे प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण मतलब उसका प्रायश्चित करते, ओके, उसका पश्चाताप करते। सो तसब बनते परिक्रमामी मतलब हे गुरु भगवंत, मैं पुराने जो भी पाप है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फिर उसके बाद है निंदामी गरियामी। निंदामी मतलब मैं वो पापों की निंदा करता हूँ।
ओके मतलब तुमको क्या करना है, तुमको जो भी दिन भर जो भी पाप हुए हैं वो पाप को सोच के उसकी निंदा करनी है. ओके फॉर एग्जाम्पल तुमने रात्रि भोजन किया, ओके फॉर एग्जाम्पल तुमने जीव हिंसा की, ओके जो भी पाप किया यू कैन थिंक अबाउट इट एंड देन उसकी तुमको निंदा करनी है. ओके आत्मा आत्मा साक्षी से मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट इट और वो सोच के उसकी निंदा करनी है. उसके बाद है गरिहामी. गरियामी मतलब गुरु के पास उसको उसको विशेष रूप से बोलना है. ओके निंदामी मतलब खुद सोच के उसकी निंदा करनी है. गरियामी मतलब गुरु को वो पाप बोलने हैं. ओके और विशेष रूप से उसका प्रायश्चित करना है. और उसके बाद है अप्पारम वो सिरामी. अप्पारम वो सिरामी मतलब मैं काया का त्याग करता हूं और मैं कौसक करता हूं. ओके so that is the whole meaning of Karami Bhante Sutra. Okay so once again, okay तो हे तीर्थंकर परमात्मा मैं सामयिक करूं, वी आर आस्किंग द क्वेश्चन मैं सामयिक करूं. तो यहाँ पे फिर बोलते हैं सामयिक क्यों करना है, तो सावजम जोगम पचकामी मतलब पाप रूपी प्रवृत्ति का त्याग का मैं पचकान करता हूं. फिर कब तक, जावर नियमम पजुआसामी जब तक मेरा नियम हो मतलब 48 मिनट्स तक मैं पाप रूपी प्रवृत्ति का त्याग करता हूं. दुवियम तिमेरम पाप दो तरह से होते हैं और तीन तरह से होते हैं. मन से होते हैं, वचन से होते हैं, काया से होते हैं. और पाप हम करते हैं और कराते हैं. सो देर आर 6 वेज हम श्रावक लोग पाप करते हैं. तस बनते मतलब हे गुरु भगवंत मैं जो भी पाप अभी तक हुए हैं उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, वो पाप की निंदा करता हूँ और गुरु के समक्ष मैं उसको ग्रह करता हूँ मतलब उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ. और उसके बाद अप्पानम वो सिरामी मतलब मैं अपनी काया का त्याग करके कौसर्ग करता हूँ. मतलब सामयिक में ना जनरली कौसर्ग करते हैं. ओके सामयिक में जो मेन मेथड है वो कौसर्ग है. पर राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू डू द कौसर्ग फॉर 48 मिनट्स इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं. पर ओरिजिनल जो उत्सर्ग मार्ग है वो उसमें कौसर्ग ही करते हैं सामयिक में. ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ करमी बंते सूत्र. तो एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? चेतन भाई हाँ इसके अंदर बोला है कि हम 6 प्रकार से पाप करते हैं, राइट? राइट मन से करते हैं और कराते हैं, पर अनुमोदना की बात नहीं है इसमें. अनुमोदना का या इसमें नहीं है. तो मैं अभी आगे में वही मैं ले रहा हूँ वो टॉपिक. तो ना शावकों के लिए 6 प्रकार के पाप बताए हैं. पर अभी ओके तो ये करमी बंते सूत्र जो है वो शावकों के लिए अलग होता है, साधु भगवंत के लिए अलग होता है. राइट तो अभी जो हमने करमी बंते सूत्र बोला वो सामयिक के लिए बोला. ओके कि हम 48 मिनट्स का सामयिक करते हैं. पर ये सेम सूत्र यू कैन यूज फॉर 4 डिफरेंट रीजंस. ओके तो पहले तो हमने सामयिक करने के लिए ये सूत्र बोला तो उसमें हमने बोला जाओ नियमम पजुआसामी. जाओ नियमम मतलब 48 मिनट्स. ओके फिर उसके बाद अगर हमको पौसद करना है, डज एनीवन नो व्हाट इज पौसद? यस समर. living life like an ascetic. राइट एग्जैक्टली. तो पौसद में ना यहाँ पे तुमने शायद पौसद नहीं किया होगा पर इंडिया में हम लोग पौसद करते थे. और पौसद यू कैन डू लाइक अ 12 आवर पौसद, यू कैन डू 24 आवर पौसद और यू कैन डू इवन लाइक इन पर्यूषण पीपल डू ऑल द 8 days ऑफ पौसद. ओके तो पौसद में क्या होता है कि यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ साधु. ओके तो उसमें भी करमी बंते सूत्र हम बोलते हैं. पर वो सूत्र क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन अ वर्ड. ओके तो उसमें ऐसा बोलते हैं करमी बनते सामायम सावजम जोगम पचकामी. नाउ जाओ नियमम के बदले जाओ पौसदम ऐसा बोलते हैं. जाओ पोसहम. ओके जो जाओ नियमम मतलब 48 मिनट्स और वेन यू से जाओ पोसहम मतलब तुम पोसद जितना भी टाइम के लिए लो, 12 आवर्स के लिए ले तो 12 आवर्स या 24 आवर्स के लिए तो 24 आवर्स. तो दैट करमी बनते सूत्र इट चेंजेस. ओके जाओ पोसहम तो सेम सूत्र कैन बी यूज फॉर पौसद. नाउ द सेम सूत्र कैन बी यूज फॉर टेकिंग दीक्षा. अभी तुमको साधु जीवन तुमको दीक्षा लेनी है तो दीक्षा में करमी बनते सूत्र इट्स लिटिल डिफरेंट. तो उसमें क्या बोलते हैं, करमी बनते सामायम सावजम जोगम पचकामी जाव नियमम के बदले जावत जीव. ओके जावत जीवाए मतलब पूरे आजीवन
जावत जिया है, मतलब नॉट 48 मिनट्स, नॉट 12 आवर्स और नॉट 24 आवर्स, इट इज फॉर द होल लाइफ। ओके, तो दीक्षा लेते हैं तो व्हाट वी डू, हम किसका पचकान लेते हैं, जावत जीवाए, मतलब फॉर द होल लाइफ। और उसमें कौन सा होता है, वी डू नॉट से डुवीहम तिविहनम, उसमें 9 प्रकार के पाप का त्याग होता है, वी से तिविहम तिविहनम। ओके, तो उसमें पाप करते नहीं है, कराते नहीं है, और पाप की अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ओके, सो फॉर साधु जीवन देर आर 9 टाइप्स ऑफ पाप, फॉर श्रावक जीवन देर आर 6 टाइप ऑफ पाप, क्योंकि श्रावक के लिए क्या है, अनुमोदना का पाप इज डिफिकल्ट टू स्टॉप। ओके, अनुमोदना का पाप इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। हम जैसे खाना खाते हैं तो खाना अच्छा लगा तो वो खाना की अनुमोदना हो गई, पर साधु जीवन में वो भी अलाउड नहीं है। साधु जीवन में वो भी बहुत बड़ा पाप है, अगर तुम खाना खाओ और खाना के प्रति राग हो गया, देन इट्स कंसिडर्ड अ ब्रेक इन पचकान। ओके, फॉर साधुस। तो साधु में क्या बोलते हैं, तिविहम तिविहनम न करेमी न कार्वेमी करन तपी। करन तपी मतलब मैं उसका अनुमोदना भी नहीं करूंगा। सो सामयिक सूत्र इज लिटिल डिफरेंट फॉर व्हेन यू आर टेकिंग दीक्षा। और उसके बाद जो फोर्थ जो सामयिक सूत्र है वो तीर्थंकर परमात्मा के लिए है। ओके, व्हेन तीर्थंकर परमात्मा टेक्स दीक्षा, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बनते नहीं बोलते, बनते क्योंकि वो तीर्थंकर परमात्मा वो खुद ही है, राइट। तो वो बनते नहीं बोलते, तो उसमें क्या बोलते, करेमी फिर बनते निकाल देते, सावजम जोगम पचकामी, करेमी सामायम सावजम जोगम पचकामी जाव जीवाए। ओके, वो जाव जीवाए बोलते हैं, और उसमें फिर दुवियम तिवियम के मतलब तिवियम तिवियम जो साधु बोलते उसी प्रकार बोलते हैं। ओके, सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कर्मी बनते सूत्र। वन इज फॉर अस, ओके, जो हम सामायिक करते हैं। दूसरा भी हमारे लिए है, हम अगर पौसत करें। तीसरा दीक्षा के लिए, एंड फोर्थ फॉर तीर्थंकर परमात्मा के लिए। तीर्थंकर परमात्मा में दे जस्ट ओमिट द वर्ड बनते, बनते शब्द नहीं बोलते हैं। ओके, तो प्रीति वो आंसर मिल गया वो क्वेश्चन का? मुझे मिला है, पर मुझे फिर भी ये डाउट है कि जो आपने बोला है वो तो साधु और भगवान के लिए, तो हमारा तो हम तो अभी दीक्षा भी नहीं ले रहे ना, हम तीर्थंकर बने हैं। तो सामायिक में हम जो पाप की अनुमोदना करते हैं तो उसका तो हमको पाप तो मिल ही रहा है, लेकिन उसमें हम उसको त्याग नहीं कर रहे। या उसका पचकान नहीं ले रहे, या वो बराबर है, क्योंकि ना पचकान इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। क्योंकि ना ये ना यहाँ पे क्या है कि वी आर टेकिंग पचकान, और पचकान मतलब प्रतिज्ञा है, राइट, और प्रतिज्ञा का भंग नहीं होना चाहिए। तो श्रावक के लिए इतनी छूट दी गई है कि माइंड से कोई अशुभ विचार आ जाए, कोई आपकी अनुमोदना हो जाए, फिर भी तुम्हारा सामयिक चालू है, तुम्हारा सामयिक का भंग नहीं है। ओके और साधु के लिए वो भी अलाउड नहीं है। ओके बराबर। तो इतना छूट दिया है हमको, बाकी तो पाप तो लगता ही है, पर सामयिक का भंग नहीं होता है, पचकान का भंग नहीं होता है। ओके बराबर। ओके, तो फिर एनी क्वेश्चंस? Yeah. When we do Samayik, does it start from Eyavahyam, or does it start, the 48 minutes start from Eyavahyam or from Karmi Bhante? नहीं, ओके, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो सामयिक में हम क्या करते हैं, पहले हम नौकार और पंचिंदिया बोल के हम स्थापना करते हैं, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू इन सामयिक, क्योंकि हम सामयिक गुरु की आज्ञा से करते हैं और गुरु के आशीर्वाद से करते हैं। तो पहले हम नौकार बोलते हैं, पंचिंदिया बोलते हैं, उसके बाद हम इरियाविया बोलते हैं। तो इरियाविया से स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सामयिक करने से पहले हमको जो भी जीव को हमको दुख पहुंचाया है हमने, तो उसको पहले सबसे पहले माफी मांगना है। ओके, वी कैन नॉट डू सामयिक अगर कोई दुखी हो हमारे से। ओके, तो हमारे से किसी को, कोई जीव को कोई भी प्रकार का दुख हुआ हो, तो पहले उसकी क्षमा मांगते हैं, एंड दैट इज हाउ द अपना धर्म स्टार्ट होता है, फ्रॉम इरियाविया। तो इरियाविया करते, तस्सौत्री करते, अन्नत करते, लोगस बोलते, और उसके बाद हम मुपत्ति का परिलेहन करते। पर जो सामयिक जो स्टार्ट होता है वो कर्मी बनते सूत्र से होता है। जो पचखान जो स्टार्ट होता है, हम पहले बोलते हैं इच्छा कारण संधि से भगवान सामयिक संधि साहु, मतलब इच्छा कारण संधि से भगवान मैं सामयिक करूं, उसकी आज्ञा मांगते। तो साधु महाराज बोलते हैं संधि साहे, मतलब तू सामयिक कर। फिर उसके बाद हम बोलते हैं जो आज्ञा इच्छा कारण संधि से भगवान सामयिक ठाऊ, मतलब मैं सामयिक कर रहा हूं। और उसके बाद हम नौकार बोलते हैं, नौकार वो मांगलिक है। उसके बाद हम कर्मी बनते बोलते, कर्मी बनते मतलब हम पचखांड ले लेते कि अभी से कर्मी बनते बोलने के बाद वी विल नॉट डू एनी टाइप्स ऑफ पाप। 6 टाइप्स ऑफ पाप्स का त्याग है। ओके,
तो करमी बनते बोलने के बाद तुम्हारा सभी पाप का त्याग हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इच्छा करे संदिशा बैसने संदिशा हो, मतलब मैं सामयिक बैठे बैठे करूं, हम उसकी आज्ञा मांग रहे हैं। एक्चुअली तो सामयिक खड़े खड़े करना चाहिए, कौसक में करना चाहिए, वो दैट इज अ मेन मार्ग। पर हमारे से 48 मिनट्स खड़े रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन कौसर्ग। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इच्छा कारण संधि से भगवान बैसने संधि साओ, मतलब मैं बैठूं सामयिक में। तो गुरु महाराज बोलते हैं बैठो, तो बोलते हैं इच्छा कारण संधि कारण बैसने ठाओ, ठीक है मैं बैठता हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं, इच्छा कारण संधि से भगवान सज्जाए संधि साओ। सज्जाए मतलब स्वाध्याय में हम पूछ रहे हैं गुरु महाराज को कि मैं स्वाध्याय करूं सामयिक में। बेसिकली हमको तो ध्यान ही करना है सामयिक में, स्वाध्याय भी नहीं करना है। पर हम गुरु महाराज को पूछ रहे हैं कि स्वाध्याय करूं, तो गुरु महाराज बोलते हैं ठीक है स्वाध्याय कर, क्योंकि हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि ध्यान तक जाए। हमको 48 मिनट सिर्फ कौसर को ध्यान करना है सामयिक में, पर अभी तक हम वो कर नहीं पाते, इसलिए वी आर सेइंग कि मैं बैठूं, मैं स्वाध्याय करूं। तो गुरु महाराज बोलते हैं ठीक है तू स्वाध्याय कर सामयिक में, तो उसकी हम अनुमति मांग रहे हैं। और उसके बाद हम 3 नौकार गिन रहे, वो तीन नौकार वो आदि मंगल बोलते हैं। वो सामयिक स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए एक मांगलिक है कि एक आदि मंगल है कि सामयिक निर्विघ्न हमारा पूर्ण हो। तो इसके लिए हम 3 नौकार गिनते हैं। ओके, तो सामयिक की पूरी विधि है एंड इट्स वेरी टेक्निकल और वेरी मतलब बहुत अच्छी विधि है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी पावरफुल विधि। तो हम लोग निकलेंगे अभी, मैं अच्छा की रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ, अच्छा ओके ओके ठीक है, थैंक यू। Bye. Thank you. ओके बाय, थैंक यू। फिर उसके बाद एक और चीज है कि हमने जो बोला राइट, करमी बनते सूत्र में 6 आवश्यक है। तो वो 6 आवश्यक कैसे है, दिस इज मोर फॉर समर। ओके, उसको समझने के लिए कि हाउ डज द 6 आवश्यक वो करमी बनते सूत्र से कैसे कैसे आए, राइट। हाउ डज 6 आवश्यक आए। तो उसमें पहला है, हम जो बोलते हैं करेमी बनते, ओके, वो पहला आवश्यक है। करेमी बनते मतलब वो कौन से आवश्यक है, 24 सत्तों। हम वहां पे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी डीप मीनिंग, ये रहस्यमय मीनिंग है। पर करेमी बनते मतलब हे तीर्थंकर परमात्मा, हम वहां पे परमात्मा को वंदन करते, स्तुति करते हैं। तो वो क्या हुआ, 24 सत्तों आवश्यक। फिर उसके बाद है सामायम, मतलब मैं सामयिक करता हूं, तो वो सेकंड आवश्यक हुआ, सामयिक आवश्यक। ओके, फिर उसके बाद है सावजम जोगम पचकामी, मैं पाप रूपी प्रवृत्ति का पचखान करता हूं, वो थर्ड आवश्यक हुआ। कौन सा आवश्यक, पचखान आवश्यक। ओके, पहला करमी बनते मतलब 24 सत्व आवश्यक, फिर सामायम मतलब सामयिक आवश्यक, सावधम जोगम पचकामी मतलब पचखान आवश्यक। ओके, फिर उसके बाद है क्या है, जावानियम पजुआ स्वामी दुवियम तिवेनम मौनम वाय कारणम न कर्मी न कार्वमी। ओके, फिर उसके बाद है तसभंते। तसभंते मतलब हम गुरु को वंदन करते हैं, वो कौन सा आवश्यक हुआ, वंदन आवश्यक। हम जब तसभंते बोलते हैं, अभी हम गुरु महाराज साहब को वंदन कर रहे हैं, तो वो हुआ वंदन आवश्यक। तसभंते परिकमामी, परिकमामी मतलब प्रतिक्रमण आवश्यक। हम जो भी पुराने पाप हुए हैं उसका हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो परिकमामी मतलब प्रतिक्रमण आवश्यक। फिर निंदामी गढ़यामी, अप्पानम वो सिरामी, अप्पानम वो सिरामी मतलब कौसर्ग में मैं जा रहा हूं, मतलब कौसर्ग आवश्यक। सो दिस आर द 6 आवश्यक। तो शास्त्र में लिखा है ये 6 आवश्यक जो हमको डेली करने को बोला है, वो करेमी बनते सूत्र से ही आए हैं। ओके, करेमी बनते सूत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र। वो हम जैन धर्म का, इट डिफाइंस द होल जैन धर्म। ऐसा बोलते हैं कि ये सूत्र द्वादशांगी का सारभूत है। ऑल द नॉलेज ऑफ एंटायर द्वादशांगी इज इन द करमी बनते सूत्र। और जो 6 आवश्यक क्रिया जो आई है वो गंधर्व भगवंतों ने करमी बनते में सूत्र में लिखी है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डू ऑल द 6 आवश्यक्स इन डेली लाइफ। ओके, एनी क्वेश्चंस? No, Jitendra, thank you. ओके, ठीक है। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आई थिंक वी कैन एंड हियर। और साइना, डू वांट टू से अ नौकर? नमो आयहंतान, नमो सिद्धान, नमो आययान, नमो उवछायान, नमो लोये सब्ब साहूनम, 105 नमोकार, सर्व पाप नाशनो,
Mangalanam च सर्वेषां कर्मं हवै मंगलम्. Thank you. Thank you, Chetu uncle. Thank you.